Hare Krishna. So, we welcome all of you in today's Bhagavad Gita for Youth program. So, today we'll be discussing ultimate protection. This is the topic. Narsimha Jayanti आने वाला है. Just next Sunday we have Narsimha Jayanti, 11th of May. So, we thought to discuss about Lord Narsimha Dev's pastime, what we can learn from this story. बेसिक स्टोरी तो सभी को पता है, राइट? प्रहलाद महाराज वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड, बट ही अपीयर्ड इन द demons family. His father was Hiranyakashipu, the greatest demon of his time. He has conquered the whole universe. Even Devatas fear seeing the power of and with tyranny of Hiranyakashipu. So Hiranyakashipu sent his son Prahlad Maharaj to a school, a Gurukul. But the teachers were salaried teachers, they take salary. They were not properly Brahmanas. They were sons of Brahmanas, but they were seminal Brahmanas, means they are interested in dharma, artha, kama. They are not interested in moksha. So those kind of Brahmanas. Today also you can find there are Brahmanas, so-called Brahmanas. They say, I belong to Brahmana family, but they are not interested in moksha. By caste, they are Brahmanas, that's all. So Prahlad Maharaj was admitted to such a school and they were teaching dharma, artha, kama. When Prahlad Maharaj, in the summer holidays, he came to his home, the palace of his father. So father called his son lovingly and made him sit on his lap. And he patted his son and he asked, my dear son, my dear boy, what you have learned from your school? What is the best thing you have learned from school? So he said to his father, Tas sadhu manne asurvarya dehinam sada samudvigna dhyam asadgrahat hitvatma patam griham andhakupam vanam gato yad harim ashriyeta. So Prahlad Maharaj said, Tasadhu manne, I consider it good. Tasadhu manne asurvarya dehinam. You are the best of all the asuras. So Prahlad Maharaj ने अपने पिताजी को कभी भी डैड, फादर ऐसे करके कभी नहीं बुलाया. उन्होंने क्या बोला? ओ बेस्ट ऑफ द असुरा, तत्साधु मन्ने असुरवर्य देही नाम. असुरवर्या, बेस्ट ऑफ द असुरा. तत्साधु मन्ने असुरवर्य देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात. Because you have accepted a temporary body and temporary world as all in all, that is why you are always in anxiety. तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न. उद्विग्न means anxiety. सदा समुद्विग्न धियात असद्ग्रहात. Asat means which is temporary. Sat means permanent. Asat means temporary. Because you have accepted something temporary as permanent, that is why you are always in anxiety. आपने पूरा यूनिवर्स कॉन्कर कर लिया, फिर भी आप खुश नहीं है, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है. That is why what you should do, because why you are not satisfied and happy? Because you have accepted temporary thing as reality. मरने के बाद आप क्या लेके जाएंगे?
कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, ये बॉडी भी टेम्परेरी है। सदा समुद्विग्नम धियात असदग्रहात हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम। इसलिए आप इमीडिएटली, ये जो घर है आपका, जो एक ब्लाइंड वेल के समान है, गृहम अंधकूपम, अंधकूपा ब्लाइंड वेल, आपका ये घर है वो ब्लाइंड वेल के समान है जिसमें पानी नहीं है। हित्वात्म पातम, सो इमीडिएटली यू लीव इट। हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यदि हरिम आश्रयेता। आप इमीडिएटली फॉरेस्ट जाइए और भगवान हरि का शेल्टर लीजिए। सो ही इज प्रीचिंग डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियसनेस टू हिज फादर, नो कॉम्प्रोमाइज। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जब बिगिनर्स आते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो हम क्या बोलते हैं, हम सेशंस लेते हैं आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, लर्न हाउ टू कंट्रोल द माइंड, लर्न हाउ टू चैंट हरे कृष्णा मंत्र, ओके, सेंस कंट्रोल, एंगर, हाउ टू कंट्रोल एंगर, लस्ट, so many things. He is directly telling, leave everything and go to forest. Take shelter of Lord Hari. Direct Krishna consciousness. He is a very bold preacher of Krishna consciousness. He is a very bold devotee. Can we ask like this to our Father? Why you are simply sitting at your home? Leave everything. Go to Vrindavan. शास्त्रों में भी बताया है, पंचम सौर्धम वनम व्रजेत। At the age of 50, you should leave everything and go to the forest. Not that whole life you are doing family responsibilities, family duties, you are grihastha, so-called grihastha. बच्चों की शादी देखना है, फिर बच्चों के बच्चों की शादी देखना है। ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है शास्त्रों में। At the age of 50, you must leave the home. So he is directly recommending to his father. So father became very angry. My own son is teaching me bhakti and is talking about to take shelter of Hari, who is my foremost enemy. मेरे सबसे बड़ा जो दुश्मन है हरि, जिसने मेरे भाई का कत्ल कर दिया in the form of Varahadev. Lord killed Hiranyaksha, his brother. So तब से वो बहुत भगवान हरि से बहुत बड़ा दुश्मनी था उनका। So he became very angry. He's talking about Hari. So Hiranyakashipu called his teachers Shanda and Amarka. Teachers का नाम था शंडा एंड अमरका। को बुलाया, आप लोग इसको क्या सिखा रहे हैं स्कूल में? तो टीचर्स आए, वो थर थर कांपने लगे, कुछ गलत हो गया, गलत बोल दिया तो आज ही काम सफाया हो जाएगा। So they were teaching, no, we are not teaching all these things. Looks like some devatas are coming disguised and they are contaminating. So Hiranyakashipu told, yes, looks like same. So please increase the security of this Gurukula, this is school, and please teach him properly. Teach him only dharma, artha, kama, no moksha. So that was the school of that time. वो स्कूल आज भी चल रहा है जिसमें हमें केवल धर्मा, अर्था और कामा ही सिखाया जाता है। थोड़ा बहुत रिलीजन के बारे में बताएंगे, ये बताएंगे कैसे जॉब अर्न करना है, कैसे एम्प्लॉयमेंट लेना है, धर्मा, अर्था, हाउ टू गेट द मनी, एंड कामा, एंड हाउ टू सेटिस्फाई योर material desires, lusty desires. That is what we are taught in the schools.
So we are studying in the school started by Hiranyakashipu some thousands of years before, millions of years before. Same knowledge we are getting today also. No moksha knowledge. So he went again. So Prahlad Maharaj was a pure devotee. अपने मदर के गर्भ से ही उन्हें भक्ति का ज्ञान मिला नारद मुनि के द्वारा। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था कि वो न जल में मरे, न थल में मरे, न आकाश में मरे, न अग्नि से मरे, न घर के बाहर मरे, न घर के अंदर मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, जब ये वाली तपस्या कर रहा था ये वरदान मांगने के लिए, तब देवताओं ने उसकी मदर को, हिरण्यकशिपु के वाइफ को कैप्चर कर लिया था। फिर वहां नारद मुनि पहुंचे और उन्होंने उनकी मदर कयाधु को रिलीज कराया कि आप इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके गर्भ में प्रहलाद महाराज, अ ग्रेट डिवोटी इज देयर, इज अ ग्रेट डिवोटी, प्योर डिवोटी, very exalted devotee of Supreme Lord Narayana, so you cannot kill him. They wanted to kill Prahlad Maharaj, even in the womb, Devatas. सोच रहे हिरण्यकशिपु एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, अब उसका बच्चा तो और कितना बड़ा टेररिस्ट होगा, so let us kill him. That was their thought. So नारद मुनि ने रिलीज कराया और मदर को अपने आश्रम में लेके आए। जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था तब तक उन्होंने अपने आश्रम में रखा और उन्होंने भक्ति का ज्ञान उनके मदर को दिया। लेकिन बीइंग अ विमेन शी फॉरगॉट एवरीथिंग। विमेन्स आर, दे कैन नॉट कीप देयर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम, समथिंग इन देयर मेमोरी। स्पिरिचुअली दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी। रेयरली somebody will be there, but generally they are not. So, but his mother forgot everything, but Prahlad Maharaj remembered everything. Even in the womb of his mother, he remembered the instructions of Narad Muni. अपने माँ के गर्भ में भी उन्हें नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस याद थे। So Narad Muni became the spiritual master of Bhakta Prahlad. So that is why he was already a pure devotee, exalted devotee. And then he got instructions from Narad Muni also. Narad Muni became his spiritual master. So when he came out from the womb of his mother, he was a very exalted devotee. A 5-year boy, he knows everything. He knows all the Bhagavatam philosophy. Bhagavad Gita, Bhagavatam, everything. So जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को वापस भेजा, so प्रहलाद महाराज, he was a preacher, youngest preacher of Krishna consciousness. So he was never interested in materialistic knowledge. So जब भी दो पीरियड्स के बीच में ब्रेक होता था, दो सब्जेक्ट्स के क्लास के बीच में जब ब्रेक होता था, 5 मिनट का, 10 मिनट का, या टिफिन टाइम होता था, तो वहां पे प्रहलाद महाराज बेंच पे खड़े हो जाते थे और सबको बुलाते थे, आओ आओ हम कृष्ण कथा करेंगे, विल टॉक समथिंग फ्रॉम भगवद गीता, भागवतम। सो यूज्ड टू टीच ऑल हिज स्कूल मेट्स भागवतम फिलॉसफी, कृष्ण कॉन्शियसनेस। ही यूज्ड टू से कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम इहा। दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस शुड बी प्रैक्टिस्ड फ्रॉम द एज ऑफ 5 years, क्योंकि सब लोग 5 साल के ही थे। तो इज टेलिंग दैट डोंट वेस्ट योर टाइम इन सिंपली प्लेइंग। आप खेलने में आपकी बहुत रुचि है, बीइंग चिल्ड्रन, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। व्हाई? बिकॉज दिस भक्ति शुड बी प्रैक्टिस फ्रॉम द एज ऑफ 5 years। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतामिहा। Bhagavad Dharma should be practiced. Why should be practiced? Durlabham manusham janma. Because this human life is very durlabha, is very rare. 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य का जन्म मिलता है।
सो अगर हम इस जन्म में भी, मनुष्य जन्म में भी सेम एक्टिविटी अगर करें, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये 4 चीजें जो पशु भी कर रहे हैं, सो मनुष्य जन्म में और पशु में क्या अंतर है? सो ये मनुष्य का जन्म ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग के लिए नहीं दिया गया है। ये मनुष्य का जन्म आत्म साक्षात्कार के लिए दिया गया है। दुर्लभम मानुषम जन्मा तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये वैसे तो टेम्परेरी है, अध्रुवम, बट अर्थदम, इट इज वेरी मीनिंगफुल। केवल ह्यूमन लाइफ में ही आप भगवत गीता या भक्ति करके, भागवतम का नॉलेज लेके आप भगवत धाम जा सकते हैं। यू कैन कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। केवल ह्यूमन लाइफ में ही पॉसिबल है। केवल ह्यूमन लाइफ ही वो लूप होल है 84 लाख योनियों में, जिसमें आप भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। जानवरों के लाइफ में नहीं निकल सकते, इवन देवताओं के लाइफ में भी नहीं बाहर निकल सकते। ओनली इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थली प्लैनेट, इट इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी out of 84 lakh species where you can take up bhakti seriously and go back to Godhead. So इस तरह से वो अपने फ्रेंड्स को सिखाते थे भक्ति के बारे में। वो बोलते थे कि हमें हार्डली 100 साल मिले हुए हैं, अभी तो कोई 100 साल भी जीता नहीं। मान लेते हैं कि 100 साल आपको मिले, उसमें से 50 साल तो हमने सोने में गवा दिए। दिन में 24 घंटे में 12 घंटा सो के हमने सोने में गवा दिए। सो कितने बचे 100 साल में से? केवल 50 साल बचे। उस 50 साल में भी 10 साल आपने गवा दिए जब आप बच्चे थे, खेलने कूदने में गवा दिए। कितने बचे? 40। उस 40 साल में भी 10 साल आपने गवा दिए जब आप यंग थे, जब आप लिखने पढ़ने में, स्कूल जाने में, पढ़ाई करने में, गर्लफ्रेंड बनाने में, उसमें गवा दिए आपने 10 साल। फिर कितने बचे? 30 साल। 30 साल में 20 साल तो आपके बुढ़ापे में निकल जाएंगे, जब आप चलने फिरने के लायक भी नहीं रहेंगे। सारे दांत गिर जाएंगे, 32 के 32 दांत। कहीं बॉडी में पेन होगा, कहीं सर में पेन होगा, कहीं पैर में पेन होगा। सो बचे कितने अभी? 10 साल। और वो 10 साल भी आप गवा देंगे क्योंकि आप भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आप घर गृहस्थी में लगे रहेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहेंगे। पैसा कमाना है, धन कमाना है, घर वालों का पालन पोषण करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डिजायर, वो डिजायर, ये लोन, वो लोन, ये ईएमआई, वो ईएमआई। तो फिर बचे कितने? 0। सो प्रहलाद महाराज ऐसे बता रहे हैं, कैलकुलेशन, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कि ऐसे अपनी जिंदगी गवाओ मत, टेक अप भक्ति। सुन के फ्रेंड्स ये सब सुन के सब बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अरे प्रहलाद, तुम ये सब कहां से सीख रहे हो? हमारे टीचर्स तो ये सब सिखाते नहीं, तुमने कहां से सीखा ये सब? फिर प्रहलाद महाराज ने बताया ये स्टोरी कि कैसे नारद मुनि से मैंने सब सीखा। दैट इज हाउ इट इज मेंशन इन भागवतम। ये सब वापस हो रहा था। 6 महीने के बाद वापस आए प्रहलाद महाराज घर गर्मी की छुट्टियों में। सो वापस हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को बुलाया
क्योंकि वो पुत्र का मोह तो सबको होता है, चाहे वो असुर ही क्यों नहीं हो। तो उसने दोबारा बुलाया और पूछा, मेरे बच्चे, तुमने क्या सीखा स्कूल में? What is the best education you have got in the school? Then Prahlad Maharaj said a very famous shloka, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atmanivedanam Iti Pumsarpita Vishnu Bhaktische Navalakshana क्रियेति भगवती अद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। हिरण्यकशिपु ने क्या पूछा था कि आपने बेस्ट एजुकेशन क्या लिया स्कूल में? सो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नवधा भक्ति के बारे में। 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, 9 प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। क्या क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा सुनना है। भगवत गीता भागवतम जब पढ़ते हैं तो वो भी सुनने के बराबर ही है। सो हमें पढ़ना चाहिए भगवत गीता भागवतम, सुनना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए। इसको बोलते हैं श्रवणम। कीर्तनम, कीर्तनम मतलब जो सुना है उसे रिपीट करिए, बोलिए। अभी यहां पे क्या चल रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? श्रवणम। मैं क्या कर रहा हूं? कीर्तनम। यस। सो 9 भक्ति में से 2 भक्ति अभी हम लोग कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भगवान विष्णु का स्मरण करना है। जब श्रवणम कीर्तनम करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्मरणम भी आएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा करना है। तुलसी ऑफर कर सकते हैं, चंदन ऑफर कर सकते हैं, पाद सेवनम। अर्चनम, भगवान की अर्चना कर सकते हैं। षोडशोपचार कर सकते हैं, 16 तरीके से भगवान की सेवा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, वस्त्र, ऐसे भगवान के षोडशोपचार कर सकते हैं। भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं, भगवान को दीप, धूप, दीप अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, अलंकार कर सकते हैं उनका। इसको बोलते हैं अर्चनम। हमारे मंदिर में होता है अर्चनम। वंदनम, भगवान को प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं। जनरली लोग क्या प्रेयर ऑफर करते हैं? भगवान मेरा ये जॉब दिलवा दो, मुझे नौकरी लगवा दो, ये एग्जाम पास करवा दो। हमारे लिए वंदनम यही है, बट इट इज नॉट स्टैंडर्ड। वंदनम मतलब हमें जो स्टैंडर्ड प्रेयर्स हैं, जो कि प्योर डिवोटीज ने लिखे हैं या गाए हैं या बोले हैं, वो हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, जिसमें भगवान का ट्रू ग्लोरिफिकेशन है। भगवद गीता भागवतम इज फुल ऑफ द प्रेयर्स, स्पेशली भागवतम। आप प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं, ध्रुव महाराज के प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं, कुंती महारानी के प्रेयर्स भगवान को ऑफर कर सकते हैं, रीड करके भगवान को ऑफर कर सकते हैं। भीष्म पितामह, भीष्म देव के प्रेयर्स हैं भागवतम में। लाइक दैट जो डिवोटीज के प्रेयर्स हैं उसको ऑफर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वंदनम। देन दास्यम, भगवान का सर्वेंट बन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं एज अ सर्वेंट। मंदिर मार्जन कर सकते हैं, मंदिर की सफाई कर सकते हैं, दास्यम। सख्यम, भगवान के फ्रेंड बन सकते हैं, फ्रेंडली वे में भगवान से रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के सुख दुख में हमेशा साथ रहता है, तो आप भी भगवान से फ्रेंडली रिलेशन कर सकते हैं। कृष्णा बोल रहे हैं कि इस भगवत गीता को जो प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो एक फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड क्या सोचेगा? मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि भगवत गीता का प्रचार करना है,
तो विल टेक अप दैट जॉब, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड. आइदर यू टेक इट एज सर्वेंट और यू टेक इट एज फ्रेंड. सो दैट इज कॉल्ड एज सख्यम. देन आत्मनिवेदनम, फुल सरेंडर, भगवान को फुल सरेंडर करना, तन मन धन से भगवान को फुल सरेंडर. ये 9 प्रकार की भक्ति नवधा भक्ति कहलाती है. ये बहुत फेमस है. जो भक्ति पूरी दुनिया में आज तक लोग कर रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये 9 प्रकार की भक्ति ही ऑथराइज भक्ति है. इसी से भगवान प्रसन्न होंगे. और कोई 10वां टाइप नहीं है इसमें. ओनली देयर आर 9 प्रोसेसेस, दैट्स ऑल. कोई 10वां मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते आप. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेति भगवती अद्धा तन्मन्ने अधीतम उत्तमम. जो अपना लाइफ इन 9 प्रकार की भक्ति से भगवान को सरेंडर करता है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा एजुकेशन मैं सोचता हूं कि वो बेस्ट एजुकेशन है. तन्मन्ने अधीतम उत्तमम. हिरण्यकशिपु ने पूछा व्हाट इज बेस्ट एजुकेशन? प्रहलाद महाराज टेलिंग दिस इज द बेस्ट एजुकेशन. ऑल द PhD is failed. So Hiranyakashipu became even more angry. और उसने प्रहलाद महाराज को धक्का देके गिरा दिया. You see how the demoniac people are there. अगर उनके ऊपर कोई बात आती है जो उन्हें अच्छी नहीं लगती, सो वो ये नहीं देखते कि वो मेरा पुत्र है या कोई रिलेटिव है, वो ये भी नहीं देखेंगे. That is demoniac people. That is a sign of demoniac people. जैसे कंस ने जब अपनी बहन को लेके जा रहा था, देवकी को और वसुदेव को, मैरिज के दिन खुशी खुशी, तो आकाशवाणी हुई देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा. उसी समय वो उसने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए, देवकी के बाल पकड़ लिए. He wanted to kill देवकी that day on the day of marriage. This is demoniac people. So like this, Hiranyakashipu became very angry and he tried all the best possible way to kill Prahlad. क्या क्या ट्राई किया उसने? प्रहलाद महाराज को पहाड़ पर से धक्का दिलवा दिया. एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले जाके वहां से धक्का दिला दिया. बट नरसिम्हदेव वॉज देयर डाउन एंड ही कैस्ट प्रहलाद महाराज. उन्हें कुछ चोट नहीं लगी. उन्हें अपनी बहन को, होलिका को बोला आप आग में लेके बैठ जाओ. आई थिंक होलिका ओनली टोल्ड कि मुझे वरदान मिला है, मैं तो जलूंगी नहीं, मैं इसको लेके बैठ जाती हूं. सो बाय मर्सी ऑफ द लॉर्ड होलिका जल गई एंड ही वाज ऑल राइट. इसलिए होलिका दहन हम होली के दिन मनाते हैं. होली के पहले उनको खौलते हुए तेल में डाल दिया गया, कुछ नहीं हुआ. तेल इमीडिएटली ठंडा हो गया. एक वेल में डाल दिया गया जिसमें डेडली सरपेंट्स थे, स्नेक्स थे, पॉइजनस डेडली स्नेक्स, हंड्रेड्स ऑफ स्नेक्स. ऐसे वेल में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ. वो सारे स्नेक्स डिवोटी बन गए और चले गए वहां से. सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ ट्राई किया. अपने वाइफ को बोला आप इसको पॉइजन दे दो. वाइफ भी इतनी डरी हुई है अपने पति से. वाइफ के लिए पति का आदेश वैदिक टाइम में ज्यादा बड़ा होता था पुत्र धर्म से. सो वाइफ ने अपने पुत्र को पॉइजन दे दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ.
सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ। सो एक दिन उसने देखा अब हो गया बस, इट कैन नॉट गो लॉन्ग। सो ही वॉज सो मच डिस्टर्ब्ड विद दिस प्रहलाद महाराज। वो बोल रहा है कि मेरे घर में ऐसी संतान पैदा हो गई जैसे मलय चंदन पे भुजंग सांप आ जाते हैं, उसी तरह से मेरे खानदान में ऐसा पॉइजनस सरपेंट आ गया। जबकि उल्टा है, हिरण्यकशिपु वाज लाइक दैट, बट ही इज थिंकिंग सेम थिंग अबाउट हिज सन, क्योंकि वो डेमोनिक फैमिली है, एवरीबडी इज डीमन, एंड वो सोच रहा है ये डिवोटी कहां से पैदा हो गया घर में, नालायक, कुल को डुबाने वाला। ऐसे आपके घर में कोई बोलता है कुल को डुबाने वाला, ये डिवोटी कहां से पैदा हो गया घर में। सो इन द कलियुगा जनरली पीपल आर डिसेंडेंट्स ऑफ हिरण्यकशिपु, लुक्स लाइक। सो नोबडी टॉक्स अबाउट भक्ति, दे आर इंटरेस्टेड इन धर्मा अर्था कामा। सो फिर हिरण्यकशिपु ने बोला कि प्रहलाद, तुम हमेशा बोलते हो कि तुम्हारे भगवान सभी जगह हैं। पहले उसने बोला कि तुम्हें ये पावर कौन दे रहा है, हम तुम्हें इतना मारने की कोशिश कर रहे हैं, तुम मरते ही नहीं हो, ये तुम्हें पावर कौन दे रहा है। सो प्रहलाद महाराज ने बोला, ये पावर जो आपको दे रहा है वही पावर मुझे भी दे रहा है। जिसने आपको पावर दिया पूरे वर्ल्ड पे, यूनिवर्स पे रूल करने का, उसी व्यक्ति ने मुझे भी पावर दिया। हम सभी को पावर देने वाला एक ही व्यक्ति है, और वो है हरि नारायण। उसने बोला, हिरण्यकशिपु ने बोला, बस बहुत हुआ, तुम बोलते हो तुम्हारे भगवान हर जगह है, किधर है तुम्हारे भगवान, इस पिलर में है क्या। प्रहलाद महाराज ने बोला, यस इज देयर, माय लॉर्ड इज देयर। सो ही वाज सो एंग्री, he took his gada club and he smashed the whole pillar। और बहुत ही गर्जना के साथ वो पिलर टूटा, क्योंकि हिरण्यकशिपु भी बहुत पावरफुल है, वो किसी को गदा से मार रहा है, सो पिलर क्या, पूरी दीवार गिर जाएगी। सो लाइक अ ग्रेट थंडर, जैसे बादल गरजते हैं, उस तरह से नरसिम्हदेव वहां से अपीयर हुए। इट वॉज लाइक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लायंस आर रोरिंग, इट वॉज लाइक दैट। नरसिम्हदेव का रोरिंग इतना भयानक था कि देवता भी घबरा गए। जो डेमोनिएक फैमिली में जो माताएं थीं, उनका गर्भपात हो गया। जंगल में जो हाथी थे वो डर के भाग गए, ये शेर आ गया अभी कोई। जनरली एलिफेंट्स आर फियरफुल ऑफ लायंस। सो ऐसे नरसिम्हदेव की गर्जना इतनी भयानक थी कि देवता भी घबरा गए, वो भी अपने गद्दी से गिर गए। ऐसा क्या हो गया। So finally Narasimhadev appeared. It was half man half lion incarnation, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि न मनुष्य से मरे, 84 लाख योनियों में किसी से नहीं मरे। न मृगम न मानुषम, is not animal, not lion and not human being. न मृगम न मानुषम, half man half lion. I have never seen, we have never seen this kind of, ये ब्रह्मा के क्रिएशन के ऊपर है, ये 84 लाख योनियों में नहीं आता ये। सो नरसिम्हदेव ने शाम के संध्या के समय, दूसरा वरदान था कि न दिन में मरे न रात में मरे। सो संध्या के समय नरसिम्हदेव ने अपने चंगा पे बैठा के, न आकाश में न जमीन में, और उसको
किल किया अपने नेल से। इसलिए हम चैंट करते हैं केशव धृता, व्हाट इज दैट श्लोका, नरहरि रूपा तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम। भगवान के नख बहुत अद्भुत हैं। क्यों अद्भुत है? भगवान के हाथ तो कमल की भांति सॉफ्ट हैं, लोटस हैंड। भगवान के सारे शरीर की तुलना लोटस से की जाती है। लोटस फीट, लोटस फेस बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत सुंदर भी है, जैसे लाइक लोटस। तव कर कमल वरे, आपका हाथ तो कमल की तरह है, लेकिन इस कमल में एक अद्भुत नेल्स निकल के आ गया। एक सॉफ्ट चीज में एक स्ट्रांग चीज निकल के आ सकती है क्या? वज्र की तरह ऐसा होता है? सॉफ्ट चीज में से वज्र की तरह स्ट्रांगेस्ट चीज निकल के आ गई, इसलिए इसको अद्भुत बताया है। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम केशव धृता नरहरि रूपा। भगवान केशवा, कृष्णा has taken the incarnation of Narahari, half man, half lion. केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। इस तरह से भगवान के नेल्स इतने स्ट्रांग हैं कि इंद्र का वज्र भी भगवान तोड़ सकते हैं। वो भी नेल्स के सामने कुछ भी नहीं है। उन नेल्स से भगवान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, पेट फाड़ दिया। और भगवान इतने एंग्री थे, उनका एंगर शांत नहीं हो रहा था। हिरण्यकशिपु का इंटेस्टाइन निकाल लिया और गार्लैंड की तरह पहन लिया उसको, और जस्ट उसको फाड़ा तो पूरा खून उनके भगवान के ऊपर आ गया। तो पूरे हेयर्स में, बॉडी में सब खून दिख रहा है, ब्लड। एंड इज वेरी फियरफुल, हिज आईज आर रेड हॉट, सो मच एंगर। हम लोग एंग्री होते हैं क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर ये क्वालिटी है एंग्री होने का। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, गॉड इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सो भगवान के एंगर को कोई मैच नहीं कर सकता। सो भगवान के इस रूप को देख के देवता सब वहां पे अपीयर हो गए, और ब्रह्मा जी ने कंफर्म किया कि ये भगवान नारायण ही हैं। तो सब लोग वहां पे अपीयर भी हो गए, लेकिन सब लोग थर थर कांप रहे थे। कोई भी भगवान के सामने किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। जनरली भगवान नारायण अवतार लेते हैं, सारे देवता वहां पे अपीयर होते हैं, लेकिन जाके प्रेयर्स करते हैं, कुछ वरदान मांगते हैं, भगवान ब्लेस करते हैं उनको। लेकिन ये ऐसा अवतार था कि किसी को भगवान के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। प्रे करना तो दूर की बात है। So Brahma ji was the leader of all the devatas. He is the leader of all the devatas. So उन्होंने लक्ष्मी देवी को बोला, लक्ष्मी देवी आपके ही पति हैं, आप जाइए शांत कराइए। लक्ष्मी देवी ने बोला नहीं नहीं, मैंने तो अपने पति का ऐसा विकराल रूप आज तक नहीं देखा, मुझे पता नहीं मेरे पति हैं या कौन है, आई डोंट नो। विष्णु इज वेरी सौम्य, वेरी काम, तो मैंने तो ऐसा रूप नहीं देखा, तो मुझे तो डाउट है, आई कैन नॉट गो, आई एम वेरी फियरफुल। सो इवन लक्ष्मी देवी इज फियरफुल गोइंग टू नरसिम्हा, हिज ओन वाइफ। देन ब्रह्मा जी ने बोला, प्रहलाद आपकी वजह से ही भगवान अवतार लिए हैं, सो आप जाओ और भगवान को। सो ब्रह्मा जी इज प्लेइंग ऑल दिस थिंग। ब्रह्मा जी हिमसेल्फ इज वेरी फियरफुल, ही डजंट वांट टू कम। उनको लग रहा है मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैंने ही वरदान दिया था, मैं जाऊंगा तो और नरसिम्हदेव वैसे ही क्रोधित है और क्या करेंगे पता नहीं। तो ब्रह्मा जी हिमसेल्फ इज नॉट गोइंग, इज सेंडिंग Lakshmi Devi, and then finally Prahlad Maharaj. So he was a pure devotee. So he went like children. If you ask them, okay, go,
So they don't know whether it is a good situation, not good situation. They don't have any knowledge, looks like. So like children, he went on the order of Brahmaji, he went. Brahmaji gave him one garland, you go and garland Narsimhadev. So he went. So when he came to Narsimhadev, he offered his Dandavat, Pranam, obeisances, full body obeisances. So as soon as Narsimhadev saw Prahlad, his anger subsided. He became very calm, very compassionate. You see, it is the difference between demons and devotees. असुरों के लिए, अभक्तों के लिए भगवान बहुत ही क्रोधित उनका रूप है, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन भक्तों के लिए भगवान बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कंपैशनेट हैं, बहुत ही काम हैं। सो इमीडिएटली उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद महाराज को उठाया और उनके सर पे हाथ फहराया। सो जैसे ही उनके सर पे भगवान नरसिम्हदेव ने अपने हाथ रखा, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ये ब्लेसिंग आपने लक्ष्मी देवी को भी नहीं दिया। लक्ष्मी देवी के ऊपर भी नरसिम्हदेव भगवान विष्णु कभी अपना हाथ रख के ब्लेसिंग नहीं देते। लक्ष्मी देवी हमेशा चरण कमलों की सेवा में रहती हैं। सो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ये ब्लेसिंग तो आपने लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा और शिवा को भी नहीं दिया, जो ब्लेसिंग आपने मुझे दिया। सो उनके हाथ रखने से प्रहलाद महाराज became very much enlightened. He was already pure devotee, but he became even more enlightened in bhakti, and he offered wonderful prayers to Narsimhadev. That is recorded in Shrimad Bhagavatam. So आप सभी को ये प्रेयर्स पढ़ने चाहिए। भागवतम के 7वें स्कंध में 7th कैंटो में ये पूरा स्टोरी है प्रहलाद और नरसिम्हा का। आप सभी भागवतम पढ़िए, स्पेशली ये प्रेयर्स पढ़िए, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा भक्ति के बारे में। ये अवेलेबल है, ऑनलाइन में अवेलेबल है। वेदा बेस एक वेबसाइट का नाम है, आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं। वेदा बेस, VEDABASE, वेदा बेस। इस पे जाइए और प्रभुपाद जी के बुक्स अवेलेबल हैं उस पे। श्रीमद् भागवतम पे क्लिक करिए, उसमें 12 कैंटोज हैं। 7वें कैंटो में जाइए, 7th कैंटो में, और उसमें प्रहलाद महाराज का स्टोरी आपको मिल जाएगा, उसको पढ़िए। डायरेक्टली चैप्टर मिल जाएगा। Prahlad is offering prayers to Narsimhadev. You can read those prayers. Read the meaning, read the translation. Some of the prayers we will see today. So Prahlad Maharaj बोल रहे हैं नरसिम्हदेव को, मन्ने धनाभिजन रूप तप श्रुतौजस तेज प्रभाव बल बुद्धि योगा नारायणाय नाराधनाय भवंती परस्य पुंसा भक्त्या तुतोष गजयूथ पाया। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, माय डियर लॉर्ड, मैंने देखा कि देवता आपके सामने नहीं आ रहे हैं, ब्रह्मा जी भी आपको प्लीज नहीं कर पा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रिंसिपल ये है, मन्ने धना अभिजना रूपा तपा ओजा तेजा प्रभावा बल बुद्धि योगा। 10 चीजों का उन्होंने नाम गिनाया। क्या क्या है? मन्ने, आई कंसीडर धना, वेल्थ। बाई वेल्थ यू कैन नॉट सेटिस्फाई कृष्णा। आपके पास धन है तो ये मत समझिए कि आप भगवान को सेटिस्फाई कर सकते हैं। धना, अभिजना, आपका जन्म गुड फैमिली में हुआ है तो आप ये मत सोचिए कि आप भगवान को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मन्ने धना अभिजना रूपा, रूपा मतलब बॉडली ब्यूटी। यू मे बी ब्यूटीफुल, यू मे बी मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड, but you cannot satisfy Krishna.
मन्ने धना अभिजना रूपा tapa. By tapasya you cannot satisfy Krishna. If it is not devotional service, you cannot do just tapasya and satisfy Krishna. Manne dhana abhijana rupa tapa shruta. By education, by knowledge, material knowledge, you cannot please Krishna. Rupa tapa shruta. Oja. By your oja and teja, bodily influence, bodily strength, teja, by sensory expertise, you cannot satisfy Krishna. You may be very healthy, you cannot satisfy Krishna. Prabhava, by your influence, you cannot please Krishna. You may have millions of followers, online, YouTube, Instagram followers, but you cannot please Krishna. Prabhava. You may have big contacts, big circles. You cannot please Krishna. Manne dhana abhijana rupa tapa oja teja prabhava bala paurusha buddhi yoga. You may have strength, bodily strength, bala, you cannot please. Paurusha, बोलते हैं ना, आपके अंदर पौरुष है या नहीं है, मतलब आपके अंदर क्वालिफिकेशन क्वालिटीज हैं या नहीं है, डिलीजेंस, एंडेवर जिसको बोलते हैं, पौरुषा. देन बुद्धि, बाय योर बुद्धि ऑल्सो, मटेरियल इंटेलिजेंस ऑल्सो यू कैनॉट प्लीज कृष्णा. एंड योगा, बाय सम योगिक पावर ऑल्सो यू कैनॉट अल्योर कृष्णा. जैसे आप कुंभ मेले में देखेंगे बहुत सारे योगी आए थे उधर. कोई योगी 30 साल से हाथ उठा के खड़ा है, वो नीचे नहीं किया उसने, और आग जला के सब बीच में बैठ गया है. यू मे हैव सम योगिक पावर, बट दैट योगिक पावर यू कैनॉट प्लीज कृष्णा. मन्ने धना अभिजना रूपा तपा श्रुता ओजा तेजा प्रभावा बल बुद्धि योगा नाराधनाय, you cannot please Krishna. Naradhanaya bhavanti parasya pumso, the supreme personality of Godhead, you cannot please. Bhaktya tutosha gajayuth paya, you can please the Supreme Lord only by bhakti. Bhaktya tutosha, only Lord is satisfied only by bhakti. Gajendra did this. Bhaktya tutosha gajayuth paya. प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं गजेंद्र ने ये किया, भक्ति किया. जब गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसका पैर, तो बहुत फाइट किया, 1000 of years का ये फाइट था ये. फाइनली जब वो गजेंद्र हार गया लड़ते लड़ते मगरमच्छ से, तो उसने भगवान को सरेंडर किया, भगवान को प्रे किया, और एक कमल का पुष्प उठा के पानी से भगवान को ऑफर किया. उसके भगवान को प्रे करने से भगवान प्रसन्न हो गए. भगवान नारायण, भगवान हरि वहां पे आए और गजेंद्र को डिलीवर किया, उसे बचाया और भगवत धाम प्रदान किया. भक्त्या तुतोष गजयूथ पाया. गजेंद्र के पास क्या है? ना तो उसके पास पौरुष है, ना तो उसके पास रूपा है, ना तेजा है, ना प्रभावा है, ना तो फॉलोवर है, गुड बर्थ है, कुछ भी नहीं है. फिर भी भक्ति से उसने भगवान को पा लिया. सो भगवान हमारे भक्ति के भूखे हैं, ना तो हमारे मटेरियल क्वालिफिकेशन के. उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो देयर आर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सरेंडर. शास्त्रों में बताया गया है कि सरेंडर के, भगवान की शरणागति के 6 प्रिंसिपल्स हैं. क्या क्या है? आनुकूल्यस्य संकल्पः, जो भी चीज फेवरेबल है भक्ति के, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. जैसे अगर चैंटिंग हमें भक्ति के लिए फेवरेबल है, फेवर करता है, भक्ति से हम चैंटिंग से आगे बढ़ेंगे, भक्ति में भगवद गीता पढ़ने से आगे बढ़ेंगे, सो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. वी शुड डू इट. फोक रेसिडेंसी में रहने से हमारा भक्ति बढ़ता है, तो वी शुड एक्सेप्ट इट. भक्तों के साथ रहने से हमारा भक्ति बढ़ेगा, तो वी शुड एक्सेप्ट इट.
तो जो भी चीजें फेवरेबल है भक्ति का, उसको एक्सेप्ट करिए। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। और जो भी भक्ति के अनुकूल नहीं है उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। जो भी चीज आपको भक्ति भगवान के पास लेके आ रही है उसे एक्सेप्ट करिए, और जो भी चीज आपको भगवान से दूर लेके जा रही है उसे रिजेक्ट कर दीजिए। ये भक्ति का दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये आपके लाइफ में हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन से आप भगवान के पास आएंगे और दूसरे ऑप्शन से भगवान के दूर जाएंगे आप। सो लाइफ में क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सो दिस इज द प्रिंसिपल। व्हाट इज दैट? आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। जो फेवरेबल है उसे एक्सेप्ट कर लो, जो अनफेवरेबल है उसे रिजेक्ट कर दो। सिंपल हो गया। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, भगवान हमेशा मेरा प्रोटेक्शन करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्ट किया नरसिम्हदेव ने, ऐसे भगवान मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, सो भगवान मुझे प्रोटेक्शन देंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये भक्ति का एक प्रिंसिपल है। ये अगर आपको विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है भगवान में, भगवान के प्रोटेक्शन में, तो आप भगवान को शरणागति नहीं कर सकते, शेल्टर नहीं ले सकते आप। पहले के जमाने में लोग साधु जंगल चले जाते थे तपस्या करने के लिए। क्या सोच के जाते थे? किसके प्रोटेक्शन, किसके भरोसे जाते थे? भगवान के प्रोटेक्शन के भरोसे जाते थे। जंगल में कौन है वहां पे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? रक्षिष्यति इति विश्वासो। गोप्तत्वे वर्णम तथा, ये फेथ होना चाहिए या ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि भगवान मेरा मेंटेनेंस करेंगे, मुझे मेंटेन करेंगे, मेरा भरण पोषण करेंगे। गोप्तत्वे वर्णम तथा, भगवान मेरे मास्टर हैं, मेरे गार्जियन हैं। ही इज लाइक, ही इज एवरीथिंग टू मी, ही इज माई गार्जियन, ही विल प्रोटेक्ट मी, ही विल मेंटेन मी। ये फेथ होना चाहिए। ये सरेंडर का चौथा प्रिंसिपल है। आत्म निक्षेप, फुल सरेंडर, ये पांचवा प्रिंसिपल है। तन मन धन से भगवान का शेल्टर लेना। भगवान अब सब कुछ आपका ही है, मैं आपका ही हूं, आपका ही हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा, बस मेरा मेंटेनेंस, मेरा प्रोटेक्शन अब आप देखिए। ये भक्ति का प्रिंसिपल है, ये सरेंडर करने का प्रिंसिपल है। ये आत्मनिक्षेप, कारपण्य मीन्स ह्यूमिलिटी होना चाहिए, हम्बलनेस होना चाहिए। सो ये 6 प्रिंसिपल है भक्ति के। षड्विधा भक्ति प्रसिद्ध्यति, षड्विधा शरणागति, ये शरणागति के 6 प्रिंसिपल है। कौन कौन से बताइए? आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, देन यस रक्षिष्यति इति विश्वासो, देन गोप्तत्वे वर्णम तथा, he will maintain me, he will protect me, then आत्मनिक्षेप, full surrender, कार्पण्य ह्यूमिलिटी, षड्विधा शरणागति। अगर आपको भगवान को सरेंडर करना है तो आपको ये 6 प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। दिस प्रिंसिपल्स आर गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। So Prahlad Maharaj has surrendered everything to Krishna and he was protected by Lord. Finally, he said that, so one thing
Narsimhadev became very much pleased on Prahlad Maharaj. He said, "My dear Prahlad, I am very much pleased upon you. You ask me whatever boons you want. जो भी वरदान मांगना है आज मांग लो. Whatever material boons you want, मैं तुम्हें दे दूंगा. I will give you." So प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, "My dear Lord, my father was the proprietor of the whole universe. और एक सेकंड में आप सबको समाप्त कर दिया आपने, और आप मुझे अल्योर कर रहे हैं कि जो मटेरियल बेनेडिक्शन मांगना है मांग लो. मैंने देख लिया, मेरे पिताजी के पास सब कुछ था, वो सेटिस्फाई नहीं थे, और आपने एक झटके में खत्म कर दिया. सो मैं ऐसे बेनिफिट का, ऐसे बेनेडिक्शन लेके क्या करूंगा मैं, जिसको आप एक झटके में खत्म कर देते हैं. ऐसे मैं मटेरियल बून्स को लेके मैं क्या करूंगा. सो इफ यू वांट टू गिव मी एनीथिंग, प्लीज गिव मी. 3 चीजें भगवान से उन्होंने मांगी, अलग अलग प्रेयर्स में, अलग अलग श्लोका में 3 चीजें बोल रहे हैं वो. इफ यू वांट टू गिव मी एनी बेनेडिक्शन, प्लीज गिव मी, प्लीज सी दैट from the core of my heart all material desires are vanquished. अगर आप मुझे कोई बेनिफिट देना ही चाहते हैं, कोई वरदान देना ही चाहते हैं, तो आप ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय से, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय से कोई भी, मेरे हृदय में कोई भी मटेरियल डिजायर्स बचे ही नहीं. एक भी मटेरियल डिजायर बचे नहीं, सब समाप्त हो जाए. ये बेनिफिट, ये बेनेडिक्शन मुझे दीजिए. हम लोग होते तो क्या करते, लिस्ट बनाते उधर हंड्रेड्स ऑफ चैट जीपीटी को पूछते, अभी नरसिम्हदेव आ गए क्या मांगना चाहिए, गिव मी 100 आइटम्स लिस्ट, 1 वर्ड आंसर है ना. हम लोग होते तो ये करते. प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि सारे डिजायर आप इरेज कर दीजिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे. और एक बहुत ही वंडरफुल चीज प्रहलाद महाराज बोलते हैं इसमें, इफ somebody does not have any material desires, he is qualified to get all the opulence of Vaikuntha. And it is true also. He says, अगर किसी ने सारी भौतिक इच्छाएं उसकी समाप्त हो गई या समाप्त कर दिया भगवान की भक्ति करके, then that person is qualified to get the opulence as good as Vishnu in the Vaikuntha. Because he will be liberated finally. He will go to Vaikuntha and his opulence will be as good as Vishnu's opulence. You see? Material desires khatam karke, you will get transcendental opulence. He says this in Bhagavatam. Second thing Prahlad Maharaj says, if you want to give me benediction, then please see that I can take the shelter of your lotus feet. शरणागति, मैं आपको सरेंडर कर पाऊं, मैं आपके चरण कमलों की शरण ले पाऊं, मुझे ऐसा ब्लेसिंग दीजिए. और तीसरा उन्होंने नरसिम्हदेव को प्रे किया कि आप मुझे ऐसा बेनेडिक्शन दीजिए, फेवर करिए कि मैं आपके भक्तों के साथ भक्तों की शरण ले पाऊं. I became the servant of your devotees. So this is wonderful thing, prayers. Actually, Hiranyakashipu also asked Prahlad Maharaj, कहां से आप ये सब सीख रहे हैं भक्ति के बारे में. अलग अलग तरीके से उन्होंने अलग अलग इंस्टेंस में पूछा और प्रहलाद महाराज ने भी उसका अलग अलग आंसर दिया. सो प्रहलाद महाराज एक जगह बोल रहे हैं, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा
मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। मतिर्न कृष्णे, भगवान के ऊपर आपके भक्ति नहीं आएगी, आपके मति में कृष्ण भक्ति नहीं आएगी, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं आएगा। परत स्वतो वा, न तो दूसरों के एंडेवर से न तो आपके एंडेवर से। क्यों नहीं आएगा? तब तक नहीं आएगा। मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहव्रता नाम। अगर आप गृहव्रता है, गृहव्रता मतलब घर गृहस्थी को मेंटेन करना है, मुझे घर गृहस्थी चलाना है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस तरह से आप फैमिली से अटैच्ड हैं, गृहव्रता नाम, देन यू कैन नॉट टेक अप कृष्ण भक्ति। मतिर्न कृष्णे परत स्वतोवा, कोई आपको कितना भी प्रीच करता रहे, आपको कृष्ण भक्ति समझ में नहीं आने वाली है। मतिर्न कृष्णे परत स्वतोवा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर, क्योंकि आपके सेंसेस अनकंट्रोल्ड हैं। अदांत गोभिर, गोभिर मीन्स सेंसेस। अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम, और आपको ये तमिश्र एक हेल, 28 हेलों में से, नरकों में से एक हेल का नाम है अंधतामिश्र। सो दिस काइंड ऑफ लाइफ विल टेक यू टू तामिश्र हेल। अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। इस मटेरियल लाइफ का बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज कर रहे हैं कि ये भौतिक लाइफ ऐसा ही है, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, बार बार गन्ने का जूस किसने पी के गन्ने को चूस के फेंक दिया, और आप जाके उस चूसे हुए गन्ने को उठाए और दोबारा चूसने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो जूस निकल जाए। इसको बोलते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। सो मटेरियल लाइफ ऐसा ही है। कैसा है मटेरियल लाइफ? बताइए कैसा है? पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, चूसे हुए गन्ने को दोबारा चूसने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कोई रस है नहीं। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे आपके पिताजी ने शादी की, बाद में जॉब किया, इतना जॉब करके आपको ना फैमिली को संभाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, कड़ी मेहनत करके जॉब करके, और वो उसमें खुश नहीं है। शादी करके भी खुश नहीं है कोई भी, और कोई भी जॉब करके भी खुश नहीं है, क्योंकि बॉस तो खुश रहने देता नहीं। तो इतना सब कुछ करके खुश नहीं है इंसान, लेकिन अपने बच्चे को क्या बोलता है? आप भी शादी कर लो। आप कब करोगे शादी? सो इसको बोलते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। इंसान खुद खुश नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को सेम चीज में धकेलता है। सो ये सब कुछ प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नरसिम्हदेव को। सो नरसिम्हदेव को बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज इज टेलिंग टू हिरण्यकशिपु कि कृष्ण भक्ति आपको समझ में आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यू आर गृहव्रता नाम, यू आर वेरी मच अटैच टू हाउस होल्ड लाइफ। पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, यू आर ट्राइंग टू टेक द जूस which already taken the juice somewhere else has taken, you are doing the same thing again and again. आपके पास में बहुत लोगों ने ऐसा किया है, बहुत सारे डीमंस आए हैं गए हैं, आप भी वही चीज कर रहे हैं। So he is telling that you can understand Krishna Bhakti only mahiyasham pad rajo abhishekam. जब when you take the dust of the lotus feet of the pure devotees, pure Vaishnavas like Srila Prabhupada, mahiyasham pad rajo abhishekam, then only you can
understand Krishna Bhakti, you can take up Krishna Bhakti. Unless you get the blessings of Mahiyasham, the great exalted pure devotees like Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON and worldwide Hare Krishna movement. Unless you come in under the shelter of Mahiyasham, you cannot take up Krishna Bhakti. You cannot understand Krishna Bhakti first of all. What to speak of taking up? So Hiranyakashipu was unfortunate. That time there was no worldwide Hare Krishna movement. So he was unfortunate. He could not attend any Bhagavad Gita class, any folk classes on weekends. So he was very unfortunate. He could not take up Krishna Bhakti. That's what Prahlad Maharaj is saying. So Narasimhadev became very much pleased on this kind of Krishna Bhakti. He said, so Prahlad Maharaj said one more thing. My dear Lord, I just want you to ask one thing. For my personal thing, I don't want anything. Was just one request, small request. मेरे पिताजी को आप छोड़ दीजिए, नरक मत भेजिए. वो आपके इतने बड़े दुश्मन रहे हैं, आपके प्रति अपराध किया, लेकिन आप उन्हें माफ कर दीजिए. देखिए, पुत्र कितना सोच रहा है अपने पिताजी के बारे में. जो पिताजी उसको मारने में के पीछे लगे हुए थे, वो अपने पिता के बारे में क्या सोच रहे हैं. ये डिफरेंस होता है भक्तों में और अभक्तों में. सो नरसिम्हदेव बोल रहे हैं कि माय डियर प्रहलाद, डोंट वरी. जिस घर में, जिस खानदान में आपके जैसा शुद्ध भक्त उत्पन्न हो जाए, उसके 14 जनरेशन लिबरेट हो जाते हैं. 21 जनरेशन पर नरसिम्हदेव से 21 जनरेशन. 3 सप्तभिः 3 into 7 कितना हो गया? 21. 21 generations will be liberated wherever a pure devotee like you appears in any family. So आप चिंता मत करिए, आपके पिताजी को मैं लिबरेट कर दूंगा. तो देखिए, कृष्ण भक्ति, लोग बोलते हैं कृष्ण भक्ति आप कर रहे हैं, आपके माता पिता का क्या होगा? आपने माता पिता को छोड़ दिया, आपने, यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर चले गए आप. सो आप ये बोल सकते हैं, प्रहलाद नरसिम्हदेव बोल रहे हैं, 21 generations are liberated. I am giving this to my family. What more I can give to my family and my parents? मैं अपने पेरेंट्स को क्या लिबरेशन से ज्यादा कुछ दे सकता हूं? They will get Vaikuntha. 21 generations, not only my parents, parents of parents, parents of parents. So like this Narasimhadev said, and he told also, you rule over your father's kingdom. So by Narasimhadev's blessing, Prahlad Maharaj got not only spiritual benefit, he also got material benefit also. You become the king and rule over your father's kingdom. And don't worry, you will not be affected by all this thing. And after this life, you will come back to me in Vaikuntha. So this is the story of Prahlad and Narasimhadev. Narasimhadev Bhagavan ki jai.